Assalamu alaikum and very good morning Oxfordians. So you hope you all are doing very well and I'm sure कि आप आपकी science class का wait कर रहे होंगे because today is Tuesday 10th of August 2021 and today is our first class. That's why you people are very excited. I received many calls yesterday night कि teacher कल science की class होगी तो of course science की class होगी. Why not? क्यों नहीं होगी? But before that, I just want to inform you one thing is very important. After 2 hours, class के 2 घंटे के बाद हमारा feedback session start होगा. That is very very important for everyone. उस पे आप लोगों की participation बहुत ज़रूरी है because उसके accordingly आपकी class attendance maintain की जाएगी. जो बच्चा वो फीडबैक सेशन नहीं लेगा उसमें रिप्लाई नहीं करेगा कीपिंग योर माइंड ही और शी विल बी कंसीडर एज एब्सेंट इन अटेंडेंस रजिस्टर. इट्स क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो मैं आपको बहुत क्लियर अच्छे से समझा रही हूँ. ये बात याद रखिए. ठीक है. ओके चले चलते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन क्लास. आज हमने क्लास में करना क्या है और फर्स्ट क्लास है तो यू आर वेरी एक्साइटेड. आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड कि जो कुछ है वो जल्दी जल्दी से आप लोग के साथ शेयर कर जी. शेयर स्क्रीन करते हैं. फॉर दैट yes, Oxford International School, Gulzare Hijri Campus, International Lower Secondary Science 3. Science 3 means grade 8. Ms. Shazia Noreen, 10th August 2021, Tuesday. Yes, syllabus outline. Syllabus outline mein we have 2 terms, first term and final term. In first term syllabus, we have 3 chapters. Chapter number 1, food and digestion. Chapter number 2, respiration and circulation. Chapter number 5, food chains and food webs. Chapter number 8, the rock cycle. Chapter number 9, heating and cooling. Chapter magnetism. I think chapter number 11. It's chapter number 11, magnetism. Chapter number 5, food chains and webs. Food chain, you can also background. ये आप background पे देख सकते हैं. Animals, plants, rabbit, loin और ये सारी की सारी जो food chain बनी हुई है एक से दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां दसवां मतलब कि इस सारे प्रोसेस को वो फूड चेन आप किस तरह से बनाए इससे आज हमने स्टडी करना है. इसे आप थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, मुश्किल ना लगे. बस इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट. ठीक है. ये है हमारा चैप्टर 5, फूड चेन एंड फूड वेब्स. नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. की पॉइंट्स जो कि हमने इसमें पढ़ने हैं जिन्हें हमने स्टडी करना है. Producers such as plant use light energy from the sun to produce their own food during photosynthesis. Producers, one word is producers. Consumers such as herbivores, carnivores and omnivores feed on plants and on other animals to obtain energy. कौन? Consumer. Producers, consumer. A food chain shows the transfer of energy in the form of food through organisms in the habitat. Food chain क्या है? सबसे पहले food chain को समझते हैं. Food chain. Plants अपनी food खुद तैयार करते हैं. Plants कौन है? Producers. उसके बाद plants को कौन खाता है? ये insects सब के सब, रैबिट्स खाते हैं, स्नेक खाता है. फिर ये जाते हैं, इनको कौन खाता है? बर्ड्स. इन चीजों को कौन बर्ड्स जो हैं परिंदे जो हैं वो किसको खाते हैं? इंसेक्ट्स को, मरे हुए कीड़ों को, पतंगों को, लाल बेग्स को, कॉकरोचेस को, इंसेक्ट्स को, इन सब चीजों को खाते हैं. ये फूड चेन रखता है. फिर हम किसे खाते हैं? हम हैंड्स को, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं. मीट के लिए हमें काउ, बफेलोज, इन सब का मीट खाते हैं. तो ये चेन बना हुआ है, ये एक फूड चेन. ठीक है. दोबारा हम उसी साइड पे चलते हैं. Several food chains are interconnected to form a food web.
और ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड फूड वेब। ये पूरा का पूरा एक वेब बन गया। A food web shows the food relationships among organisms and how energy is transferred from one producer to consumer in the form of food. प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक वो एनर्जी, वो फूड जो पहुंच रही है, वो फूड चेन और फूड वेब बना हुआ है। Every organism in a food web is linked either directly or indirectly. सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स जो हैं, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। Any chain of one population in the food web will affect the other population in the food web. ये थे हमारे की पॉइंट्स जिसे हमने पढ़ना है। Producers is an organism that eats an other organism. They prey. Predator, sorry, I'm very sorry, predator लिखा हुआ है। The prey is the organism which is predator eats. For example, the predators and the prey alone is a zebra, deer, जी बिल्कुल सही। मैं आपको स्टार्ट करूंगी। यहीं से स्टार्ट बेबी प्रोडक्टर्स। सबसे पहले है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर से भी पहले एक वर्ड आएगा प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? जो कि अपना फूड खुद तैयार करते हैं। वो कौन है? प्लांट्स। इस पिक्चर में प्लांट्स नजर आ रहे हैं और पीछे चले जाते हैं। ये देखिए, ये सब के सब आपको इस फूड चेन में प्लांट्स पीछे दिख रहे हैं, ग्रास दिख रही है। जो चीज, जो लोग, जो प्रोड्यूसर्स अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और वो कौन है? ओनली प्लांट्स। ये देचकी में खाना पकाना प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए हमने किसी का गोश्त दिया, मसाले लिए, दालें ली, उन सबको डाला और फिर पकाया, मिक्स किया। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे मेक देयर ओन फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस की लाइट में प्रोसेस में अपना खाना खुद तैयार करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स। ये तो थे प्रोड्यूसर्स। फिर आ जाते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? omnivores, carnivores and herbivores। हम omnivores जो कि दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं। जो प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, तो ये सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दिस इज फूड चेन। पहले कौन आ गया? प्रोड्यूसर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर कौन आ गया? कंज्यूमर, जो कि उन्हें यूज कर रहे होते हैं। Omnivores, carnivores and herbivores। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स वो होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को कैच करके उनका गोश्त मजे मजे से खा रहे होते हैं, मतलब कि वो शिकारी। ये है ओवरऑल हमारा चैप्टर फूड चेन और फूड वेब। अगर ये आपको प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और नेक्स्ट वन इज प्रीडेटर समझ आ रहा है तो इट्स वेरी इजी। और इट्स रियली वेरी इजी, इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई आई चूज दिस टॉपिक, दिस चैप्टर। ये फूड चेन है, ये फूड वेब है। फूड वेब में देखिए डिटेल में चीजें जा रही हैं, किस तरह से, कैसे, किसने क्या चीज तैयार की, कौन किस पे डिपेंड किया। और ये एक सिंपल फूड चेन है जो हम के 2, 3, 4 से पढ़ते आ रहे हैं। फूड चेन इन इकोलॉजी, द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड फॉर्म में एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन और फूड वेब। Food chain intertwine locally into a food web because most organisms consume more than one type of animal or plant। One type of animal or plant, एक तरह के एनिमल
और प्लांट ऑर्गेनिज्म। ये देखिए भी फूड चेन की एक पिक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग। अ फूड चेन शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन अ इकोसिस्टम। देखिए एक सिस्टम के थ्रू यहाँ से प्लांट से एनर्जी जा रही है ग्रास तक, ग्रास से ये आ रही है रैबिट तक, रैबिट से आ रही है ये काउ तक, काउ से फिर ये बर्ड तक, बर्ड से दोबारा वापस आ रही है। ठीक है, ये देखिए ये भी एक फूड चेन है। एनिमल ग्रेजिंग ऑन अ ग्रास लैंड, एनिमल्स जो है वो ग्रास खा रहे हैं, ये क्या है? कंज्यूमर्स। ये क्या है? कंज्यूमर्स। प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स, उन्होंने अपना खाना बनाया है और एनिमल्स हम उसे खा रहे हैं। ये देखिए ये भी इसी तरह से है। एक और पिक्चर इसमें भी बताया है कि प्लांट के डायग्राम को शो करके दिखाया गया है कि किस तरह से फूड जो है वो बन रही है और उसे एनिमल खा रहा है या वो दूसरे तक पहुंच रही है। फूड चेन। अब फूड चेन शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यस, ये मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। प्लांट, कैटरपिलर, बटरफ्लाई, वो जो पिछले पिक्चर में है इसमें। A food chain start with the producers, producers से start होती है, फिर consumers आ जाते हैं, फिर predators आते हैं। कुछ चीज रिपीट हो रही है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। फूड वेब, ये देखिए most animals eat more than one type of food. Why is the textiles लिखा है to take a variety of food. एक तरह के फूड पे जब हम कंज्यूम कर सकते हैं then why we need different types of foods. ये हमारे कुछ क्यूरीज हैं जिसे हमें सॉल्व करना है। Thinking a variety of food not only provides an animal with different types of nutrition, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप्स की न्यूट्रिशंस मिलती हैं डिफरेंट टाइप की फूड खाने से। अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन किया था ना कि क्यों जब हम वी कैन सर्वाइव लिव ऑन वन टाइप ऑफ फूड देन व्हाई वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के फूड्स में डिफरेंट न्यूट्रिशंस मिलते हैं। जो न्यूट्रिशंस हमें एप्पल से मिल रहे हैं वो हमें बनाना से नहीं मिल रहे, जो हमें बनाना से मिल रहा है वो हमें ब्रेड से नहीं मिलेगा, और जो हमें ब्रेड से मिल रहा है वो हमें पकौड़ों से नहीं मिलेगा। डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड खाने का मतलब क्या होता है? डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमें। ये भी फूड चेन है, ये भी आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। दिस फूड चेन्स कैन बी लिंक्ड टू फॉर्म अ फूड वेब एज शोन बिलो। ये देखिए ये स्टार्ट होता है ग्रास से, ग्रास ऊपर है, लिजर्ड खा रही है, फिर उसको यहाँ पर ये जा रहा है टोड, मेंढक जो बड़ा वाला होता है वो, और ये प्रेइंग ये क्या होता है? मींस एक कीड़ा होता है जिसकी टांगें लंबी लंबी होती है, वो इसे खाता है। ये भी आ गया एक और फूड चेन, फूड वेब। इस फूड वेब में भी आप देखिए इस तरह से। अब ये पिक्चर्स जो आपको शो करने का मतलब ये होता है कि जब आप बुक में ये पिक्चर्स देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि फूड चेन क्या है, फूड वेब क्या है, प्रोड्यूसर्स क्या है, प्रेडेटर्स क्या है और कंज्यूमर्स क्या है। तो वो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आती जाएगी। स्टडी द फूड वेब इन पिक्चर, ये भी आपने स्टडी करना पड़ेगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इफ देयर आर मोर देन ज़ेब्रास इन द ग्रासलैंड देयर विल बी मोर फूड। जाहिर सी बात है अगर ज्यादा है तो ज्यादा चीजें वो खाएंगे। Lion do not have any eat zebras. जी, इसमें जो सबसे खास चीज समझ आने वाली थी दैट इज फूड चेन। एक चेन बनी हुई है जो कि इंटरलिंक करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ईच अदर। इसमें सबसे पहला आपके पास आ जाएगा प्रोड्यूसर्स जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स आर प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स है। फिर हमारे पास आ जाएंगे कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में कौन है? हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, एंड वी आर आल्सो इंक्लूडेड ओमनिवोर्स। हम फूड प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेडेटर्स आ जाते हैं। प्रेडेटर्स जो कि शिकारी होते हैं। अब ये हमारा फूड चेन और फूड वेब बन गया। दैट इज वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। डायग्राम्स देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और 2 घंटे के बाद मैं आपसे इससे रिलेटेड बहुत इजी अच्छे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। ठीक है, कुछ समझ ना आए यू कैन टेक्स्ट मी एंड यू कैन कॉल। अल्लाह हाफ़िज़।